Hello dear student, welcome to the lecture. In last lecture we have discussed the Geldal method for estimation of nitrogen. Okay. In continuation of same part we are discussing a quantitative analysis of organic compound. Okay. So two types of analysis, qualitative and quantitative analysis. Okay. So we are estimating the element which are present in organic compound. So we have organic compound, basically organic compound. So in order to do the quantitative analysis, different elements are estimated. First, we are estimating the nitrogen. Estimation of nitrogen. Okay. So for this purpose, we have two different methods. Which are those? So already one we have discussed, that is Geldal method. And second one, that is Dumas method. So both these methods are useful for estimation of nitrogen. Ultimately we are getting the percentage of nitrogen in organic compound. Here also we are getting the percentage of nitrogen in a organic compound, given organic compound में कितना नाइट्रोजन है ना, ये निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है. पहली मेथड है ए, दैट इज जल्दाल मेथड, एंड वी हैव बी मेथड, दैट इज Dumas method. In previous lecture already we have discussed Geldal method. Now today we will discuss Dumas method. Okay. How organic compound, the percentage of nitrogen can be determined. So let us see. We have here Dumas method. This is the experimental setup for the Dumas method. What we have here, we have a furnace. First of all, we have to understand what does it mean. What is mean by furnace? Okay. फर्नेस होता क्या है ना. देखो, ये जो फर्नेस है, फर्नेस का मतलब होता है इट इज नथिंग बट इट इज हीटिंग. ओके, हीटिंग प्रोवाइड करता है. फर्नेस होता क्या है? फर्नेस का मतलब होता है जो चीज हीट प्रोवाइड करती है उसको हम फर्नेस कहते हैं, है ना. फर्नेस इंस्ट्रूमेंट, ओके, इट इज सेटअप है. क्या है? जो यहाँ पर हमें हीट प्रोवाइड करता है. सो फर्नेस प्रोवाइड द हीट, it provide the heat. Okay, so heat is provided with the help of furnace. Now here we have the a passage of, okay, here we have different segment. Here what we have, here we have copper oxide rods. We have copper oxide rods. Okay, then we have here copper oxide and organic compound. Okay, whatever organic compound we want to estimate, here we have that mixture. Okay, organic compound plus copper oxide. Okay, then here we have the coarser copper particle. Okay, here what we have, here we have the copper. For Dumas method, okay, what happened? We are treating the organic compound. What we are treating? We are treating the organic compound. Organic compound is treated. We can say it is, we are going to heat the organic compound in a furnace. Means फर्नेस जिसमें हीटिंग होती है उसको फर्नेस कहते हैं, है ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट करते हैं. चलो, हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, दैट इज कॉपर ऑक्साइड. ओके, and later on it is heated in presence of copper. So copper oxide and copper, we have two catalysts. Okay, now what happened? Whatever the nitrogen content present in organic compound, this nitrogen content which is present in the organic compound, I will use another color. Suppose we have some amount of nitrogen in organic compound. This nitrogen will react with this copper oxide. Okay, nitrogen will react with the copper oxide. Now what will happen? What will be the reaction? इसको हम थोड़ा सा
बाद में मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। So we are providing the, here we are providing the heat, okay. This is our furnace, okay. Inside the furnace we have taken the organic compound, okay. Organic compound contain the nitrogen. So now what will happen, our reaction will be, our organic compound, or we can say organic compound contain nitrogen. It is get converted into oxides of nitrogen, and some nitrogen is get converted into nitrogen, okay. And we are getting here, this reaction is in presence of copper oxide. Now what happened, this oxide of nitrogen, again this oxide of nitrogen is get reduced, this NO, X stand for any number, okay. ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, NO2 एंड ओके, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, दिस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगेन फर्दर रिएक्ट विद द कॉपर, वेयर वी हैव कॉपर, हियर initially it react with the copper oxide and later on it react with the finely divided copper. So यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर से ये एक बार कॉपर के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा, ये ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, नाइट्रोजन में, N2, ओके, N2 गैस। ये भी कैसा है, गैस है, ये भी कैसा है, गैस, ये सॉलिड है, ठीक है। This is the basic principle behind the Dumas method, okay. Here we have the furnace, okay. Inside the furnace combustion reaction will take place, okay, combustion will take place. Organic compound is undergoes combustion in presence of which catalyst, copper oxide and copper, okay. Initially what happened, the nitrogen which is present in organic compound, this nitrogen get converted into oxide of nitrogen, okay, and that nitric oxide of nitrogen, then again it is reduced with the help of copper and there is formation of nitrogen gas. Now whatever the nitrogen gas is formed, suppose here we have the coarser copper particle, okay, here we have the nitrogen gas which is evolved. Suppose we are getting the evolution of nitrogen gas here, this nitrogen gas get passed here, okay, and it is trapped in a mercury seal, okay. It is, we have the manometer, okay, it is trapped in this tube, okay, and here we are going to measure the pressure. What we are measuring, we are measuring the pressure. So this level will indicate the pressure and we can find out the percent volume of nitrogen gas evolved at experimental condition. How much nitrogen gas is evolved from given organic compound. जैसे मान लो मैंने 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, तो 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस फर्नेस में कंबशन करने के बाद कितना नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है ना, और ये नाइट्रोजन गैस पास होगी, ये क्या है, वाटर में पास होगी, है ना, वाटर में पास हो रही है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास लेवल है जो हमको प्रेशर दिखाती है। जैसे जैसे नाइट्रोजन गैस की लेवल बढ़ेगी तो वैसे वैसे यहाँ पर एक्चुअली ये लेवल बढ़ती जाएगी और वी कैन मॉनिटर द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन which is liberated from organic compound, okay. So this is the basic working principle. Now the questions will be asked on this method, okay. Question will be designed, direct question will be asked, you have to calculate the percentage
How to calculate? That we learn. Calculate percentage of nitrogen in organic compound. This is our ultimate aim. We have to calculate percentage of nitrogen in organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन है? तो देखो प्रॉब्लम कैसे डिजाइन होते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करके देखेंगे. Here we have example. Organic compound contain the weight of organic compound is given here. It is 0.35 gram. Gives 55 ml of nitrogen. मतलब कितना ml नाइट्रोजन गिवन हुआ? 55 ml of nitrogen. Collected at 300 Kelvin and 750 mm pressure. Now, another term which is important, aqueous tension at this temperature, it is 15 mm Hg. Calculate the percentage of nitrogen in given organic compound. So very important. जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है डुमास मेथड का, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया होता है, ओके, बट हमें क्या करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विच इज लिबरेटेड एट एसटी. ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, दिस इज 28, that is N2, it is atomic weight of nitrogen gas, then volume of N2 at STP in ml, that is 22, okay, at 22,400, okay, into what? Volume of N2 gas liberated, volume of N2 at STP divided by given quantity, weight of organic compound, मतलब कितना वेट दिया है ना. तो इसमें जो प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है N2, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी. ओके, तो देखो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, वी हैव टू कैलकुलेट दिस टर्म. हमें ये वॉल्यूम ऑफ N2 कैलकुलेट करना है. देखो हमारे पास दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन है एसटीपी कंडीशन. तो देखो एसटीपी कंडीशन पर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ये प्रॉब्लम में दी है और एसटीपी कंडीशन हमें पता है एट एसटीपी. सो हमारे पास क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम यहाँ पर लगाएंगे. देखो यहाँ पर P1 कितना है हमारा, here we have the P1 that is, see here, how much P1 is given, it is 750 mm Hg. So P1 become 750 mm Hg. Now again V1 कितना है, what is V1, वॉल्यूम दिया है कितना ml है, 55 ml. एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम कितना है, 55 ml. ओके, देन T1 कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन. ओके, नाउ वी नो द एसटीपी कंडीशन. एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इज 1 atm, मींस इट इज हाउ मच, एसटीपी पर कितना होता है, yes, it is 760 mmHg. Okay, then V2, we don't know V2, we have to calculate the V2. then T1 कितना होता है, T1 होता है 273 केल्विन. ओके, 273 केल्विन. ये हो गया हमारी एसटीपी कंडीशन. ठीक है, एसटीपी कंडीशन पर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, मतलब प्रेशर कितना होता है, 1 atm प्रेशर होता है, 760 mmHg प्रेशर होगा. वॉल्यूम पता नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, वी हैव द फॉर्मूला, व्हाट वी हैव,
we have formula P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. This is our basic formula. Okay, so for calculating with respect to V2 हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है V2, तो V2 के लिए क्या आएगा बताओ. So V2 will be equal to P1 V1 into T1 upon P2 into T2. बराबर है. T2 ऊपर चला जाएगा. P1 V1 then T2. यहाँ पर करेक्शन कर लो. यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा T2 और यहाँ पर क्या होगा, T1 नीचे आएगा, P2 into T2. ओके, ये हमारा है करेक्ट फार्मूला. सो दिस इज V2 is what? It is V2, this one. Volume of gas which is liberated, volume of nitrogen which is liberated at Sp. Now put the values. यहाँ पर हमको वैल्यूज पुटअप करनी पड़ेगी. क्या क्या वैल्यू देखो. V2 will be equal to how much? P1 कितना है देखो. P1 यहाँ पर हमारे पास है 715 mmHg, 715 into V1 कितना है 55. देखो. Now again here we have to take here it is very important that we have to not put this 715 mmHg. We have to minus this aqueous tension. And what is this aqueous tension? देखो, नाइट्रोजन के साथ साथ वाटर वेपर का भी प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है वॉल्यूम के लिए. ओके, इसी वजह से क्या होता है, वाटर का कंट्रीब्यूशन आता है और उस वाटर की कंट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल एक्वियस टेंशन. तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमेशा ये जो हमारा P1 है इसमें से एक्वियस टेंशन माइनस करो. तो कितना है एक्वियस टेंशन, देखो एक्वियस टेंशन यहाँ पर है 15 mmHg. 15 mmHg मीन्स हमारा इफेक्टिव P1 कितना बना, we have the P1 that is 700 mmHg will be equal to our P1. P1 is equal to 700. यहाँ पर लग दो 700 into V1 कितना है 55 into T2 कितना है, यहाँ पर T2 कितना है, T1 है, T2 कितना है देखो 273 केल्विन डिवाइडेड बाय P2 कितना है देखो, यहाँ पर ये P1 है, ये P2 है. ठीक है, P2 है 760 into T1 कितना है देखो, T1 है 300 केल्विन. ठीक है, चलो जस्ट सॉल्व दिस वन. चलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये भी गया, ये भी जाएगा. ठीक है, तो क्या बनेगा, देख अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ. देखो आपको क्या मिलेगा, सो वी विल गेट द आंसर 385. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, अगर आप सॉल्व कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP that is V2 is equal to आपका वॉल्यूम आएगा सो 46.09. सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देख लो 46.09. आप इसको राउंड फिगर 46 बोल सकते हैं. नाउ जस्ट अप्लाई द फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करो. नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 upon 22400 into V2 कितना है 46.09. वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड. कितना है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना है देखो, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.35. रख दो यहाँ पर.
0.35 ग्राम। देखो एज इट इज परसेंटेज, तो क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग दिस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बिकम, ओके, ये क्या होगा, देखो ये दो जीरो हो जाएगी इसके साथ, ओके, क्या बनेगा, 7840। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 7840 मिलेगा यहाँ पर, और ये कितना होगा 28 इंटू 46.09, ये कितना बनेगा, ये आपका, यस, अगर आप ये करते हो 28.46 इंटू 46.09, अगर आप ये सॉल्व कर लोगे इंटू 1, ओके, नो प्रॉब्लम, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बिकम इक्वल टू, ये आएगा 48, बनेगा आपका, ये बनेगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 28 इंटू 46, इट विल बिकम 1288 डिवाइडेड बाय 7840, ओके। नाउ यू कैन डू दिस सिंपली, तो ये क्या होगा, 78 है और 12, इसको डिवाइड कर दो, इससे आएगा, अगर आप इसको देखो ये कितना है 7840, मतलब इसको आप कंसिडर कर सकते हो, 7 को 8 कंसिडर कर लो, और यहाँ पर इस यस ये जो 12 है 8, तो ये कितना बनेगा, और इसका 8, तो ये बनेगा 1, ओके, मीन्स ये कितना बनेगा 0.1 बनेगा, 0. ये बन जाएगा 1, और कितने बचे 4, ओके, 8 से जाएगा, ये बन जाएगा 16, ओके। तो ये क्या बना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बन गया 16 पॉइंट समथिंग, तो आप 16.09 समथिंग आएगा, ओके, तो 16.00% आएगा आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज बाय डुमास मेथड, ओके। अगेन वी हैव वन मोर, in Dumas method 0.52 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वांटिटी दी है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 68.6 ml ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, just solve this one solution. Again we have same method for solving, we have experimental condition, we have experimental, and we have STP condition, okay. In experimental condition we have P1, okay, we have V1 and we have T1. So P1 is given, how much it is, it is 756 mmHg, 7, okay, चलो बताओ 756 mmHg। देन V1 कितना है, देखो वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 68.6 mm, ठीक है। T1 कितना है यहाँ पर, T1 क्या है 27 डिग्री, 273 प्लस 27, तो कितना आएगा ये बन जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो ये बन गया 300 केल्विन, ओके, कर लेना। यहाँ पर एसटीपी पर क्या कंडीशन होती है बताओ, एसटीपी पे कंडीशन हमारी होती है P2 कितना होता है 760 mmHg, ठीक है, 760 mmHg। उसके बाद क्या होता है V1 तो V2 होता है, V1 तो V2 हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है T2 T1 हो गया, T2 कितना है बताओ
STPTO पर टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, ठीक है। जस्ट अप्लाई आवर फॉर्मूला फॉर V2. V2 is equal to what? V2 is equal to T1 V1 into T1, okay, P1 V1 into T2 upon P2 V2 into T1, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो। P1 की वैल्यू कितनी है 756, ओके, इनटू V1 कितना है 68 ml 68.6 ml इनटू T1 कितना है T2 कितना है 273 केल्विन डिवाइडेड बाय P2 कितना है 760 इनटू V2 कितना है V2 ही निकालना है, यहाँ पर करेक्शन कर दो। T1 का है T1 कितना है T1 300, ठीक, सॉल्व करो 300। यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो, देखो ये 760 है और ये 756 है, तो ये क्या होगा नियर अबाउट ये बन जाएगा 0.9, है ना। ये कितना बनेगा 0.9 बनेगा, है ना। और ये जो है 273 एंड ये 300 जो है अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो ये बनेगा 0.91, तो ये भी क्या बनता है 0.91। तो बचा क्या, बचा सिर्फ 68.6, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम कितना बनेगा, तो आप अगर आप कैलकुलेट करते हो तो V2 आपका बनेगा 62.42 ml, ये आपका बन गया V2। Now your formula is very simple, okay, just put this value of V2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हो तो देखो यहाँ पर करके देखेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 अपॉन 22400 इंटू व्हाट आवर V2 कितना है यहाँ पर V2 की वैल्यू 62.42 डिवाइडेड बाय आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट यहाँ पर हमें दिया है कितना है 0.52 ग्राम, ओके, 0.52 ग्राम इनटू क्या करना है 100, ओके। तो दिस इज आवर व्हाट V2 जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दो जीरो से चले जाएंगे और क्या बचेगा सिर्फ, देखो ये कैलकुलेशन आपको हमेशा आने वाला है 28 डिवाइडेड बाय 224, तो 28 डिवाइडेड बाय 224 कितना होता है, ये होता है 1747। देखो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेट लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू आपका आएगा 1747 डिवाइडेड बाय ये आएगा 116.48, ओके। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपका कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 15%, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली इट इज 15%, ओके। आप सॉल्व कर लेना एग्जैक्टली, इट इज 15%। देखो और एक प्रॉब्लम है जो आपको खुद से करना है और आंसर बताना है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक। देखो वी हैव सॉल्व दिस वन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके। This is our basic principle of Dumas method. What happened? We have taken organic compound in a furnace. We have heated organic compound. The nitrogen gas is evolved. That evolved nitrogen gas is passed in a aqueous tube. The pressure we have monitored here, and we have calculated the volume of nitrogen. How much nitrogen is evolved? Okay. And
By knowing the volume of nitrogen, we will able to calculate the percentage of nitrogen in organic compound. Okay, with this we will stop here. Thank you very much.